السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری احمد علی صاحب کا ویڈیو بڑی ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں، آپ اسے پورا ملاحظہ فرمائیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کے جانب، نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے چلتے ہیں دوستو، ویڈیو کے آج اگر میں اور آپ مل کر ایک غور و فکر کریں کہ دنیا میں سب سے پوتر زمین کون سی؟ یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے اربوں خربوں مائلوں میں۔ یہ دنیا چاروں طرف، ہاں میرے دوستو، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو، بعض علماء اس نتیجے پر آئے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی زمین اگر کوئی ہے تو مکہ مکرمہ کی زمین۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بعض علماء کا کہنا سب سے اچھی زمین وہ مکہ کی زمین ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں کعبہ نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ملتزم نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ارے ہمیں حجر اسود نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں زمزم کا کنواں نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں غار ہیرا نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، صفا پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے، مروہ پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر علماء نے فیصلہ کیا سب سے اچھی زمین کون سی؟ بولو نا کون سی؟ مکہ۔ بعض علماء اس نتیجے پر آئے کہ سب سے پوتر زمین اور سب سے پاک زمین اگر کوئی زمین اس دنیا میں ہے تو کہو وہ مدینہ منورہ کی نعرہ زمین۔ تکبیر، بولو بولو نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ سب سے پوتر زمین مدینہ منورہ کی زمین ہے، جسے ہم مدینہ بھی کہتے ہیں، جسے منورہ بھی کہتے ہیں، جسے میمونہ بھی کہتے ہیں، جسے طیبہ بھی کہتے ہیں اور جسے طابہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب تکبیر۔ سوال ہے، علماء کے دو گروپ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین سب سے پوتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین سب سے زیادہ پوتر ہے۔ علماء کے درمیان میں کانفرنسیں ہوئی، علماء کے درمیان میں میٹنگیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا تھوڑی دیر کے لیے مکہ اپنی جگہ پر عزت والا، بولو مکہ اپنی جگہ پر، مدینہ اپنی جگہ پر تعظیم والا۔ لیکن علماء، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی عالمگیری، بڑے بڑے فتاوے میں یہ فیصلہ آیا مکہ اپنی جگہ پر عظمت والا، مدینہ اپنی جگہ پر عظمت والا، لیکن مدینہ پاک میں وہ زمین کا ٹکڑا، مدینہ پاک میں وہ زمین کا حصہ جس پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کا جسم اثر ہے، کا جسد اثر ہے، زمین کا اتنا حصہ جس پر ہمارے نبی کا جسد اثر ہے، جسم اثر ہے، علماء کا فیصلہ ہے یہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، علماء کرام نے یہاں تک لکھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے میں وہ ٹکڑا جہاں روضہ اطہر ہے، جہاں روضہ مبارکہ ہے، جہاں روضہ مقدس ہے، امام مالک کہتے زمین کا یہ ٹکڑا تمام زمینوں سے افضل ہے، یہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، اس نتیجے پر تو آ گئے مدینے کا وہ حصہ مبارکہ، اس زمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد چلو تیسرے نمبر پر کون سی زمین؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا بیت المقدس۔ اسی لیے حدیث پاک میں لکھا، سن لینا توجہ سے سننا، اسی لیے حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی دو رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، 2 رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، اللہ کہتے تو نے 2 رکعت پڑھی ہے، میں 1,00,000 رکعت کا ثواب تجھے عطا کروں گا۔ بولو بولو سبحان اللہ، نعرہ بولو تکبیر۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مدینہ میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پڑھی ہے 2 رکعت مگر 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بیت المقدس میں جائے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز، لیکن 25,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا مکہ، بولو مکہ مکرمہ، بولو نا ساتھ میں، آواز تھوڑی اور بڑھائیں نا بھائی، ہمارے آپریٹر سے کہوں گا تھوڑی آواز اور بڑھائے، ساتھ میں کہہ دو بھائی کتنی زمین مقدس ہو گئی؟ 3، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک، بولو نا ساتھ میں، بیت مکہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، مدینہ میں نماز پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور ایک روایت میں وہاں بھی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، اور کوئی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو 25,000 رکعتوں کا ثواب۔ اب میں یہ احمد آباد کے مورارجی چوک میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنے آ رہا ہوں، یہ 3 زمینوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی؟ احمد آباد کی زمین۔ کون بولا؟ میں آ رہا ہوں اس بات پر، اتنا جلدی احمد آباد میں کھا کو کھودا بھائی؟ مولانا انجم تو نہیں بولا؟
देखो कैसा आराम से चाय पी रहा, पूछता भी नहीं। ये अंजुम नाम जब सुनते तो ऐसा लगता कितना बड़ा शायर होगा। भाई तवज्जो देना, मोरारजी चौक की धरती पर, इस भारत की धरती पर, इस हिंदुस्तान की धरती पर आज खुलकर मेरे प्यारों सब लोग अपने कानों से सुनना कि मक्का की जमीन, मदीने की जमीन और बैतुल मुकद्दस की जमीन, उसके बाद अल्लाह की कसम खाऊं तो गलत ना होगा, परवरदिगार की कसम खाऊं तो गलत ना होगा। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने इन 3 जमीनों के बाद अगर किसी जमीन को पसंद किया तो मुझे कहने दो, अल्लाह की कसम, वो हिंदुस्तान की जमीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु वो अकबर, हिंदुस्तान की अल्लाहु जमीन है। अकबर। आप कहते हो कि कारी साहब ने कैसे कह दिया हिंदुस्तान की जमीन है? ना मेरे दोस्तों, मैं आपको दलील पर दलील पेश करूंगा और इतनी दलील होगी कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और यहां से खड़े होकर कहेंगे हमारी भारत की जमीन और हिंदी इंडिया की जमीन और हिंदुस्तान की जमीन अल्लाह की कसम बहुत पवित्र जमीन है। आपको दलीलें पेश करना शुरू करूं? बोली हबीब इजाजत, चेहरा मत बिगाड़। मैंने बहुत ज्यादा बयान कर दिया भाई, ऐसा लगता मेरा बयान मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हिंदुस्तान की जमीन सबसे पवित्र है, उसकी सबसे पहली दलील पूरा मजमा साथ में कहे हजरत आदम जन्नत में थे। बोलो हाँ, अरे बोलो ना, पूरा मजमा बोलो ना, हजरत आदम कहाँ थे? जन्नत में। अरे जन्नत में थे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा। हजरत आदम जन्नत में थे। अब मेरे दोस्तों सुनना, बहुत लंबा वाकया, मुझे सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बताना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया में भेज रहे, आज भी तफसीर की किताबों में जाओ, तारीख की किताबों में जाओ, आपको पता चलेगा हजरत आदम अगर जमीन पर उतरे हैं, अरे उतरे हैं और अल्लाह ने नबी बनाया है तो वो हिंदुस्तान की जमीन पर उतरे अल्लाहु हैं। अकबर, बोलो बोलो नारे तकबीर। नारे तकबीर। हजरत आदम कौन सी जमीन पर उतरे? हिंदुस्तान। इसलिए कि तफसीर की किताबों में साफ लिखा है कि हजरत आदम जिस जमीन पर उतरे हैं उसका नाम सुरंगदीप है। उस वक्त हिंदुस्तान फैला हुआ था, आज जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, और श्रीलंका में पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम कोलंबो है। आज भी उस पहाड़ के ऊपर एक सफेद पत्थर है जिस पर हजरत आदम के उतरने के पांव के निशाना है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो पहली बात, हजरत आदम उतरे हैं तो कौन सी जमीन में? और एक अजीब बात बताऊं, शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए कि मैंने भी जब सुना तो पहली मर्तबा सुना। हजरत आदम जब जन्नत से आए तो कुछ पत्ते लेकर आए। कहां के पत्ते लेकर आए? जन्नत के पत्ते लेकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के पत्ते लेकर आए। ये हिंदुस्तान की धरती पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के पत्ते लेकर आए और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता गया कि ये हिंदुस्तान की जमीन पर फैला दो, ये हिंदुस्तान की जमीन पर फैला दो, ये फला जमीन पर फैला दो, ये फला जमीन पर फैला दो। मेरे दोस्तों, आज भी तारीख बताती है कि मालूम नहीं हिंदुस्तान की कौन कौन सी जमीन में हजरत आदम ने जन्नत के पत्तों को फैलाया होगा। ये हिंदुस्तान की जमीन वो जमीन है जिसने जन्नत को भी छुआ है, जिसने जन्नत को भी छुआ है। इसलिए कि जन्नत के पत्ते हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जमीनों में फैलाए गए। और आज मेरे दोस्तों वो अलग बात है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा, आसाम से लेकर चेन्नई तक, आसाम से लेकर मद्रास तक, आसाम से लेकर केरला तक, ऐसे ऐसे ऊद हिंदी अल्लाह तबारक व तआला ने जंगलों में ऐसे दरख्त पैदा किए जिसको आज हम ऊद कहते हैं, जिसको हम संदल कहते हैं। आज कसम से कहना पड़ेगा, पूरी दुनिया में सबसे भारी ऊद अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान का ऊद है। अल्लाहु अकबर। लोग सऊदी जाते हैं और वहां से इतर लेकर आते हैं। मौलाना हबीब सऊदी से ऊद लेकर आया, लेकिन मालूम नहीं ऊद यहीं से तो वहां गया था। आज मक्का में काबे में जहां भी लोबान जलता है, जहां भी खुशबू आती है, पूछो मक्का वालों से, पूछो मदीना वालों से, पूछो अरब वालों से, पूछो, जो ऊद जाता है वो ऊद हिंदी है, जो संदल जाता है वो संदल हिंदी है। मेरे दोस्तों, हजरत आदम नबी बने हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर, और जन्नत के पत्ते आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर। और बताऊं आगे के, बस बताऊं आगे, बताऊं। एक बात सुन लो, मौलाना हबीब सब जोड़े नाराज हो रहे हैं। एक बात और सुन लो मेरे दोस्तों, हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे, यानी बेटे या पोते, उनका नाम है हजरत शीस। बोलो क्या नाम है? हजरत। आप तफसीर की किताबों में चले जाओ, तारीख की किताबों में चले जाओ, हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे हजरत शीस। यूपी की जमीन जिला फैजाबाद में आज भी अल्लाह की कसम हजरत शीस का मजार मुबारक वहां मौजूद है। तो हजरत शीस भी आए हैं, तो बोलो कौन सी जमीन पर? हिंदुस्तान। और एक अजीब बात बताऊं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया,
बोलो तूफान आया नहीं आया? और लोग कश्ती में बैठे कि नहीं बैठे? अरे बोलो ना कश्ती में बैठे ना, सबने कश्ती में बैठी और दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कश्ती में बैठे और वो कश्ती चली 7 दिन और 7 रात तक चली, एक रिवायत के मुताबिक चली, लेकिन जाकर ठहरी एक पहाड़ पर। बोलो ना हजरत नूह की कश्ती कहां ठहरी? कुरान करीम ने उस पहाड़ का नाम लिया वस्तवत अलल जूदी। कुरान करीम कहता है कि हजरत नूह की कश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी वो पहाड़ है जूदी। और जूदी पहाड़, तारीख उठाओ, हिंदुस्तान के अयोध्या के करीब जो पहाड़ है उसमें एक पहाड़ जूदी पहाड़ है। तो हजरत नूह के कदम आए हैं वो भी हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं, हजरत शीश आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों हजरत आदम आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। और मेरे दोस्तों एक आखिरी बात, फिर मैं मेरे मुद्दे पर आ जाऊं। आखिरी बात, ये इलाहाबाद में 2 नदियों का संगम होता है। हाँ बोलो ना, कौन कौन सी? गंगा जमुना। लोग कहते गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती गुमनामी है। 2 नदियों का संगम होता है, बोलो कौन कौन सी? गंगा और जमुना। आप वहां पर जाओ, आपको पता चलेगा कि जमुना का जो पानी है वो सफेद कलर का है, आसमानी कलर का है, सिल्वर कलर का है, और गंगा का जो पानी है वो गोल्डन कलर का है, वो सुनहरे कलर का है। अरे दोनों नदी जब एक जगह पर मिलती है, ये गंगा है और ये जमुना है, इसका कलर सिल्वर है और गंगा का कलर गोल्डन क्यों है, सुनहरा क्यों है? दुनिया के सब पानी का कलर आसमानी कलर होता है, तो गंगा का पानी सुनहरे रंग का क्यों हो गया? मेरे दोस्तों हमारे उलमा में से एक नानोतवी आलिम जिनके बारे में लिखा उनका मुराकबा जबरदस्त था, वो गंगा के किनारे गए और उन्होंने मुराकबा किया। ये मुराकबा तसव्वुफ की बात है, मुराकबा किया, उनको कशफ हुआ वो गंगा जहां से बहती है वहां चले, वो कोराकम के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में चले। उन्होंने कसम खाकर कहा जहां से गंगा नदी निकलती है वहां न जाने कम से कम 15 नबियों की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। 15 नबियों की कब्रें, जहां से गंगा सागर निकलता है वहां नबी की कब्रें मौजूद है। हजरत नूह जो कश्ती में उतरते हैं वो कश्ती वो कश्ती जिस पहाड़ पर आती है वो हिंदुस्तान में, हजरत शीश के कदम हिंदुस्तान में, हजरत आदम के कदम। बल्कि मेरे दोस्तों ये पंजाब हरियाणा जहां अल्लामा जिनका मजार मुबारक है मुजद्दिदुल मिल्लत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये पंजाब में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जाओ, एक गांव आता है जिस गांव का नाम है बरास। एक जमाने में वहां की सारी आबादियां बर्बाद हो गई, लेकिन अल्लाह की कसम आज भी तारीख की किताबों में लिखा है कि सरहिंद शरीफ यानी पंजाब और हरियाणा में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जो एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान का नाम है बरास, वहां भी न जाने कितने अंबिया की कब्रें हैं। और आज वहां पर एक मदरसा कायम है जिसका नाम है गुलजार अंबिया। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों ये इंडिया की जमीन, हिंदुस्तान की जमीन, भारत की जमीन बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, लेकिन मेरे प्यारों इस जमीन को हमने गुनाहों से खराब किया। जब मेराज की बात आएगी तब इस बात पर फिर आएंगे। मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात ये कहना है, ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, बोलो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। एक जमाना था, आज हम उसको दिल्ली कहते हैं, हिंदुस्तान की राजधानी कहते हैं। एक जमाना था इसे दारुल औलिया कहा जाता था, इसे बैतुल फुकरा कहा जाता था, बल्कि इसे 22 खाजगान की चौखट कहा जाता था। ये अजमेर वाले बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने शागिर्द हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा दिल्ली चले जाओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली गए और दिल्ली जाकर कहा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा मुझे दिल्ली में अच्छा नहीं लगता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा दिल्ली में रहो, अल्लाह तुम्हारी जरिए से 22 वलियों को यहां पर पैदा करने वाला। नारे तकबीर। दिल्ली 22 ख्वाजा की चौखट बनी ये हमारे हिंदुस्तान में। और आज मेरे प्यारे दोस्तों वो जो उलमा का सिलसिला चला है, भले दिल्ली में 22 ख्वाजा की चौखट है, लेकिन उसके बाद में उलमा आए। मेरे दोस्तों उलमा आए, गुजरात की जमीन पर आए, अहमदाबाद की जमीन पर आए, सूरत की जमीन पर आए, भरूच की जमीन पर आए। बल्कि मेरे दोस्तों हम सीना ठोक कर ये कहते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हदीस का इल्म आया है तो गुजरात की जमीन पर आया। तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये अहमदाबाद वो अहमदाबाद है जहां शेख कुतुबे आलम आए, जहां शाह आलम आए, जहां शेख अहमद कत्तू आए, जहां उस्मान साबरमती आए, जहां सैयद मालिक शहीद आए। अरे मेरे दोस्तों कितनों के नाम गिनवाए जाए जो गुजरात के बड़े बड़े उलमा है। लेकिन आज मैं ये हिंदुस्तान की बात करते हुए आज बहुत फख्र महसूस करता हूं
کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی جاری ہے، اور بولو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی، اللہ العزیز اللہ بولو اکبر قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ 99% لوگ مسلمان نہیں جانتے ہیں کہ اس ہندوستان کے لیے مسلمانوں نے کیا کیے ہیں۔ میرے دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قیامت کے دن ایک صدقہ جاریہ بن جائیں، اور لازمی اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے گروپ، اپنے دوست یار، اپنے ملنے جلنے والے لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور پیش کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔